Good morning, children. Today we are going to start SST chapter 10 of Geography section. The name of the chapter is India Agriculture. This is part 1 of chapter 10. In this part, we will learn about why India is called an agrarian country, then the reasons for agricultural potential, that is, why India has shown its brilliance in agriculture. Then the third is insufficient progress in agriculture sector in India. That is, we will understand the reason. In spite of showing the brilliance, then why there is insufficient progress in India. So let's continue. We will start with introduction. India is called an agrarian economy. Now, why is India called an agrarian economy? Because agriculture sector has more importance in India. That is, agriculture sector यहाँ पर dominate करता है. It is called dominant sector, and it employs majority of people, majority of population in India. That means ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं. सो इट इज़ द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. दैट इज़ वाई द फर्स्ट पॉइंट इज रिटन कि ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को अर्निंग दे रही है. देन इज सेकेंड इन वर्ल्ड एग्रेरियन प्रोडक्शन. दैट मीन्स India is the second largest country after China in terms of agriculture production. अगर हम देखें तो हम चाइना के बाद सेकेंड पोजीशन पर आते हैं. दैट मीन्स फर्स्ट चाइना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, फिर हम आते हैं सेकेंड पोजीशन पर. देन द थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉइंग मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन. दैट इज 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज engaged in agriculture activity while contributing 22% to the national income. Now here, whatever national income is generated, agricultural sector contributes 22%. That means 22% जो शेयर होता है नेशनल इनकम में वो ड्यू टू एग्रीकल्चर सेक्टर होता है. द फोर्थ पॉइंट इज सर्व्स फूड रिक्वायरमेंट्स, input for industries and export supply. Now serves food requirements. That means whatever is grown in agriculture, that is we consume vegetables, fruits or crops are grown. These satisfy the need of food and also agro output. जितना भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल सर्व करता है. दैट मीन्स इट बिकम्स एन इनपुट. इनपुट मीन्स रॉ मटेरियल बन जाता है वो फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एंड एक्सपोर्ट सप्लाई. नाउ एक्सपोर्ट सप्लाई मीन्स वी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. दैट इज वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन सरप्लस. जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर में वो हम बाहर की कंट्रीज में सप्लाई करते हैं. दैट इज वी एक्सपोर्ट agro production. Now the fifth point is India earns a good amount of foreign exchange, that is 18% exports of agriculture. अब हमने फोर्थ पॉइंट में ही पढ़ा कि हम एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो भी हमारे पास सरप्लस में होता है. तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो नेचुरल है कि वहाँ की करेंसी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी. दैट इज फॉरेन एक्सचेंज takes place. Suppose we are supplying anything agro products to USA, so we will earn dollars from them, we will receive dollars from them, and these dollars are foreign exchange currency. and जितना भी हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है उसमें 18% कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर का. दैट इज 18% फॉरेन एक्सचेंज इज अर्नड ड्यू टू एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर. The next thing is potential of Indian agriculture. That is due to which things India is called agrarian economy. क्यों हम उसे agricultural country कहते हैं, agrarian economy कहते हैं? Because
In most of the areas in India, 2 or more crops annually can be taken. हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं इंडिया में. हमको वो नेचर ने गिफ्ट दिया है इंडिया को. सो ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक हमारे पास ये सब फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल हैं. द फर्स्ट वन इज favorable climate for round the year cultivation. Now India has a favorable climate. हमारा कंट्री का जो क्लाइमेट है वो ना ही ज़्यादा ठंडी ना ही ज़्यादा गर्मी है, इसलिए वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ही सूटेबल है. बिकॉज इफ़ वी लुक इन टू द मैप यू विल फाइंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज़ नॉर्थ इंडिया, वो टेम्परेट जोन में लाया करता है. दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल. एंड इफ़ वी लुक बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं उसे हम, या फिर इक्वेटोरियल जोन बोल सकते हैं. दैट मीन्स ऊपर आता है टेम्परेट, नीचे आ रहा है ट्रॉपिकल, ड्यू टू विच मैनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी. ये अलग अलग चीज़ें जो हो रही हैं क्लाइमेट में डिफरेंस क्रिएट करेंगी उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, और हम क्रॉप्स भी वैसे ही ग्रो कर सकते हैं. जिनको जो टेम्परेचर सूट करता है वैसे ही क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं. सो दिस diversity can be used as a benefit for growing multiple crops. The next is natural irrigation due to rain and rivers. अब हमारी कंट्री में रेनफॉल बहुत अच्छा होता है. The next is rivers. Rivers originating from Himalayas are perennial. जो हिमालयाज से रिवर्स निकल रहे हैं वो पेरेनियल होते हैं, यानी कि उनके अंदर वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है. सो अब ये क्या होता है, जैसे जैसे रिवर्स फ्लो करते हैं तो इरोजन टेक्स प्लेस. रिवर्स बहुत स्पीडीली फ्लो करेंगे तो इरोजन होगा. अब इरोजन की वजह से होगा सेडिमेंटेशन. फिर सेडिमेंटेशन की वजह से इट रिजल्ट्स इनटू एल्यूवियल डिपोजिशन ड्यू टू द बाय द रिवर्स. अब क्या होगा, डिपोजिशन की वजह से फर्टाइल प्लेन्स बन जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टाइल प्लेन्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, Ganga river has created many fertile plains in northern region. Northern side पर हम देखें तो गंगा नदी की वजह से बहुत सारे fertile plains create हुए हैं due to the alluvial deposition. And due to this, agriculture is possible in these plains. So अब ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास favorable climate है, irrigation facility भी है, हमारे पास फर्टाइल प्लेन्स भी हैं जहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं. अब ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी हमको एक और चीज़ चाहिएगी, दैट इज़ वी रिक्वायर लेबरर्स. क्योंकि हमारे पास लैंड है, टेम्परेचर है, वाटर है जिसमें हम क्रॉपिंग कर सकते हैं. बट द फोर्थ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लेबरर्स. हमको लेबर्स चाहिएंगे जो फार्म में जाकर काम करें. नाउ गिवन द फैक्ट दैट India is the second most populated country in the world, so we have that skilled and hardworking laborers with us. So all these factors make India perfect destination for growing agriculture. But even then, the progress in agriculture is not sufficient. जितना चाहिए उतनी progress नहीं हुई है अब तक. So let us understand why there is insufficient progress in agriculture. So, agricultural production in India is much less compared to the world due to reasons like dependence on monsoon, that is irregular and uncertain. Then is traditional farming, that is not adopting scientific approach for cultivation. So children, हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है वो वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है. यही चीज़ हमने कही थी कि सेकेंड लार्जेस्ट हम पोजीशन पर आते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में. बट क्यों आते हैं सेकेंड? बिकॉज हमारी कंट्री जो है वो मॉनसून पर डिपेंडेंट है, और मॉनसून जो हमारी कंट्री में है वो बहुत ही इरेगुलर होता है और अनसर्टेन होता है. दैट मीन्स कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड समटाइम्स इवन अ सिचुएशन ऑफ फ्लड अराइजेस. तो जो फ्लड होता है या फिर ज़्यादा बारिश की वजह से क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. ऑल्सो इफ़ देयर इज़ लेस रेनफॉल
तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे क्रॉप्स। द नेक्स्ट रीज़न इज़ ट्रेडिशनल फार्मिंग। जो हमारी कंट्री में सालों से मेथड्स चलते आ रहे हैं, दैट मीन्स जो भी हमारे पूर्वजों ने किए होंगे वही मेथड्स पहले से जो चल रहे हैं वही फॉलो कर रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग फॉर साइंटिफिक मेथड्स, दैट इज़ न्यू मशीनरी यूज़ करना या न्यू चीज़ों को अपनाना, ये नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न। देन नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन। जो हमारी कंट्री के फार्मर्स हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने में। एंड लेस यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉडर्न मशीनरी। मॉडर्न टूल्स और मशीनरी का भी हमारी कंट्री में बहुत ही कम यूज़ हो रहा है एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बहुत कम यूज़ होते हैं। सो दिस क्रिएट्स लेस प्रोडक्शन। द नेक्स्ट थिंग इज इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरीगेशन। हमारी कंट्री में कहीं कहीं इरीगेशन की फैसिलिटीज़ जितनी चाहिए उतनी नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर नॉट एबल टू cultivate the fields. The next is Indian farmers are generally poor and uneducated. Now in India, farmers are very poor and uneducated. Because they are uneducated, they are not aware of the new methods which can be used in doing the farming. So this also is a hindrance for them. The next is more population and larger family. Now because we are द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में एंड लार्जर फैमिलीज आर देयर। सो व्हाट हैपन्स, दीज फैमिलीज आर वर्किंग ऑन फार्म। सपोज 5 लोगों की ज़रूरत है फार्म पर और बड़ी फैमिली है तो सारे लोग फार्मिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स 8 पीपल आर डूइंग फार्मिंग इन दैट फैमिली। बड़ी फैमिली है, 5 लोगों की ज़रूरत है फार्म में और 8 लोग जा रहे हैं फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा लोग जा रहे हैं वो हमको दिख रहे हैं एम्प्लॉयड, बट इन फैक्ट दे आर नॉट एम्प्लॉयड बिकॉज दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। मतलब 5 जने जाएंगे तो भी वही प्रोडक्शन हो सकता है, पर जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी फील्ड में एम्प्लॉय हो सकते थे, वो अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते थे और अब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस इनकम का। सो दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमको नहीं दिख रही है। एंड व्हाट हैपन्स, दीज पीपल आर सीन टू बी एम्प्लॉयड। सबको लगेगा कि दे आर एम्प्लॉयड, दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, बट इन फैक्ट देर इज अ नीड ऑफ 5 persons ऑन द फार्म एंड मोर पीपल आर वर्किंग। सो दैट मोर, जितना भी एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज स्मॉलर फार्म्स। अब जैसे जैसे हमारी जनरेशन्स बढ़ती जाती हैं तो फार्म्स जो हैं वो पास ऑन होके, पहले बड़ों के पास थे अब ज़्यादा मेंबर्स हो गए तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लॉट का एरिया, तो छोटे छोटे फार्म्स बन जाते हैं। सबको डिवाइड किया जाता है, उस प्लॉट को सबको दे दिया जाता है। सो व्हाट हैपेंस, छोटे फार्म्स बनने की वजह से आप न्यू टेक्निक्स, न्यू टूल्स, न्यू मशीनरी नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि एरिया छोटी हो जाएगी, तो आप ट्रैक्टर या ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो यू विल हैव टू अडॉप्ट देन अगेन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग विच विल इन फ्यूचर और in return generate less production. The next is educated mass opting away from agriculture. Now educated people, or you can say the youth which is going for education, वो सोचेगा नहीं कि मैं एग्रीकल्चर में जाऊं। वो हमेशा यही सोचेंगे कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, हम कहीं सिटीज़ में सेटल हो जाएं। सो दे गो फॉर ऑप्टिंग दोज जॉब्स एंड वो एग्रीकल्चर से दूर हो जाते हैं। दैट मीन्स दे गो अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड दिस इज़ द रीज़न वाई एग्रीकल्चर इज़ लैगिंग बिहाइंड। सो इट हैज़ लोअर स्टेटस. This creates lower status for agriculture in the society. So children, let's move to our next topic, that is types of farming. Here the first one is subsistence farming. So that is खुद का पेट भरने के लिए जो हम फार्मिंग करते हैं उसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जान सकते हैं। मतलब
जिसमें फार्मर जब फार्मिंग कर रहा है तो सिर्फ उसकी फैमिली की नीड्स को ही फुलफिल कर पा रहा है, वो किसी बिजनेस पर्पज से नहीं कर रहा है. ही इज नॉट सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट. Okay, so let's proceed. Economic status. Poor condition, poor economic condition of farmer. Here, the farmer is very poor. That means he does not have enough money to invest in agriculture. उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतना इन्वेस्ट कर सके और अपने एग्रीकल्चर को या अपने फील्ड पर कुछ डेवलप कर सके. द नेक्स्ट इज लैंड होल्डिंग्स. दैट इज this type of farming is done by a poor farmer. क्योंकि वो गरीब है तो वो बड़ा लैंड नहीं ले सकता है एंड उसके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ही होती हैं अपने पास, इसीलिए वो ये फार्मिंग प्रेफर करता है क्योंकि छोटी सी एरिया में यही फार्मिंग हो सकती है जिसमें से सिर्फ उसकी फैमिली का ही गुजारा हो. वो और बड़े बेसिस पर वो सोच भी नहीं सकता फार्मिंग करने की बिकॉज ही हैज small land holdings with him. So generally a person with small land holdings prefer this kind of farming. The next is method. Traditional method of farming and HYV seeds, fertilizers and insecticides are not used. Now because क्योंकि ये फार्म्स छोटे हैं, क्योंकि फार्मर के पास बड़ा लैंड नहीं है इस टाइप ऑफ फार्मिंग में, तो फार्मर जो होता है वो परचेज नहीं कर सकता कुछ भी गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स, HYV सीड्स, बिकॉज ही हैज नो मनी टू परचेज गुड सीड्स एंड दिस HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स. सो ही प्रेफर्स ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग. Then is irrigation. Dependence on rainfall and wells for irrigation. नाउ सी, जब फार्मर के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो सबमर्सिबल पंप्स, ट्यूब वेल्स या ऐसी कोई फैसिलिटी यूज़ करे जिससे इरिगेशन पॉसिबल हो, तो वो डिपेंड करता है सिर्फ रेनफॉल और वेल्स पर. सो ही डिपेंड्स ओनली ऑन द रेनफॉल और वेल्स, or he can get the water from the nearby areas for the irrigation purpose. Okay, then comes labor, family or community labor. Now because he has no money, so he won't appoint laborers because he has very less money and that he invest in the farming. तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कुछ लेबर्स को अपॉइंट करे, तो इसलिए वो अपनी फैमिली को ही इंगेज कर देता है इस एक्टिविटी में. So he gets engaged his family only in growing crops or doing farming. Now comes the purpose. The purpose of this kind of farming is life maintenance or self-consumption. That means crops are grown for self-consumption. Okay. Then is output. Per hectare output is low. Now because the land is small, नो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया जा रहा है, अच्छी क्वालिटी की सीड्स नहीं है, फर्टिलाइज़र नहीं है, तो जो पर हेक्टर आउटपुट आता है वो बहुत कम आता है. एंड दिस आउटपुट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ हिज फैमिली. सो दिस वॉज सबसिस्टेंस फार्मिंग. द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज ड्राई फार्मिंग. अब ड्राई वर्ड सुन के ही हमको समझ में आ जाता है कि जहाँ कम बारिश हो रही होगी, दैट मीन्स द एरिया विथ लेस रेन विल कैरी ऑन ड्राई फार्मिंग. सो इन दिस फर्स्ट वन इज रेनफॉल. इन दिस रीजन रेनफॉल इज लेस, इसलिए क्या होता है, कैरीड आउट इन द रीजन्स ऑफ लेस रेनफॉल. दैट मीन्स ये सिर्फ उन्हीं लैंड्स में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर रेनफॉल कम होती हो, दैट इज उन्हीं एरियाज में. ओके, इनएडिक्वेट रेनफॉल होती है, इसलिए ये फार्मिंग होती है वहाँ पर प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज इरीगेशन. नाउ देर इज नो सोर्स ऑफ इरीगेशन लेफ्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई इरीगेशन का सोर्स ही नहीं है, पानी ही नहीं है, क्योंकि कम बारिश आ रही है तो पानी आएगा ही नहीं. लेस फैसिलिटीज फॉर इरीगेशन, सो वी डोंट हैव वाटर एंड सो वी डोंट हैव इरीगेशन फैसिलिटीज. देन इज क्रॉपिंग पैटर्न. एंड now because the rain is less, तो only one crop is grown. क्योंकि पानी कम है हमारे पास, तो एक ही क्रॉप का प्रैक्टिस किया जाता है, दैट इज वन crop is grown there. Now examples are
millets, jowars and pulses. Now in this dry region we can grow jowar, millets and pulses. Okay, because we don't have irrigation facilities, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं ऐसे रीजन्स में, और ऐसे क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, jowar, millet and pulses. Now in Gujarat, wheat and gram is grown in post-monsoon period and humid soil. Post-monsoon humid soil. Now what does this mean? Wheat और gram जो होते हैं वो post-monsoon period में humid period हो जाता है वो, क्योंकि moisture absorb कर लेती है, soil जो होती है वो moisture को absorb कर लेती है, and we can grow there this kind of crops. इसलिए ऐसे crops वहाँ पर उगाए जाते हैं. The next method is wet farming. Now where it is practiced? It will be practiced in the regions receiving more rainfall. जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहीं पर ये method follow कर सकते हैं. So first is rainfall. Rainfall को ध्यान में रखते हैं, तो carried out in the regions of heavy rain. ज़्यादा बारिश वाले region में practice किया जाएगा. Then is irrigation. अब क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं इरीगेशन की, सो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर इरीगेशन. देन इज क्रॉपिंग पैटर्न. क्योंकि ड्राई फार्मिंग में कम बारिश हो रही थी तो एक क्रॉप को ग्रो कर रहे थे, अब इधर क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही है तो वी कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप, क्योंकि हमारे पास इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं. वी आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन. ओके, द एग्जाम्पल्स फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर paddy, sugarcane, cotton, wheat and vegetables. Now also we can grow kharif crops in rainy season, and we can grow rabi crops by irrigation during any other season by using irrigation facilities. Also wheat can be grown in wet farming regions because यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है wheat का wet farming में, और यही wheat का एग्जाम्पल dry farming में भी दिया हुआ है. बट बोथ आर डिफरेंट बिकॉज ड्राई फार्मिंग रीजन में, दैट इज गुजरात में जब वीट ग्रो किया जाता है, ड्राई फार्मिंग वाली एरिया है वो, तो वहां पर जो वीट ग्रो किया जाता है वो लो क्वालिटी का होता है, और यहाँ पर जो वीट ग्रो किया जाता है वेट फार्मिंग में वो थोड़ा क्वालिटी में डिफर करता है. सो वीट इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी इन गुजरात, एंड इन अदर रीजन्स वीट कैन बी ग्रोन ऑफ हायर क्वालिटी. वीट में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं. ओके, सो दिस वाज वेट फार्मिंग मेथड. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज शिफ्टिंग और जूम एग्रीकल्चर, दैट इज शिफ्टिंग फार्मिंग, और वी कैन से जूम एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और जूम एग्रीकल्चर. नाउ हेयर लेट अस अंडरस्टैंड क्या होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. Now this is totally a wasteful technique. पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है. Now what do we do here? We go to a forest area first. हम forest area में जाते हैं. We deforest the forest area. We cut down all the trees in the forest area. ठीक है, फिर हम सारे ट्रीज को जला देते हैं. इस मेथड में सारे ट्रीज जो आपने काटे हैं फॉरेस्ट एरिया के वो सब आप जला दोगे, एंड इसी बर्निंग की वजह से, ड्यू टू दिस बर्निंग ऑफ ट्रीज, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस. नेचुरल फर्टिलिटी में इंक्रीमेंट आता है क्योंकि ट्रीज एक बायोडिग्रेडेबल मैटर हो जाते हैं आफ्टर बर्निंग. सो द बर्न्ड रेसिड्यू मिक्स विद द सॉइल एंड मेक्स इट अ बायोडिग्रेडेबल मैटर विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ओके, नाउ let us understand. It is performed by nomadic tribes. What are nomadic tribes? That means people who move from one place to another and live there for some period. ठीक है. Second is forests are burnt and cleared. Farming is carried out there. अब क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं nomadic tribes वाले, वो पहले इस forest area को जला देते हैं, trees को burn कर देते हैं, clear कर देते हैं पूरा land, और फिर जब वो ट्रीज का रेसिड्यू मिक्स हो जाता है वहां पर वो फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए वहां पर रहने वाले हैं, तो ऐसा वो प्रोसेस करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द फार्मिंग टेक्स प्लेस फॉर 2 to 3 years. जितने साल वो वहां पर रहेंगे, क्योंकि वो नॉमेडिक हैं, तो जितने साल वो वहां पर रहेंगे तब तक ये लोग अपने कंजम्पशन नीड्स के लिए क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स,
या फिर सीरियल्स ग्रो करेंगे। मीन्स जब तक वो वहां रहेंगे तब तक उस एरिया में क्रॉप्स ग्रो करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड दैट एरिया इज अबेंडेंट। अब जब उनको लगेगा कि सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई है तो वो उस एरिया को वैकेंट करके या हम कह सकते हैं अबेंडन करके चले जाएंगे दूसरी एरिया में। The next point is same method is applied to start farming at other place. Now they will shift to other area and do the same process again. जो आपने उन्होंने पहले की थी वही सेम प्रोसेस किसी फॉरेस्ट एरिया में जाकर वो लोग फिर से वहां पर रहेंगे, फिर से फॉरेस्ट एरिया का डिफॉरेस्टेशन करेंगे एंड बर्न करेंगे ट्रीज। सेम प्रोसेस इज कैरी डाउन। ओके, देन सीरियल्स और वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि वो वहां पर अपनी डेली जो नीड है फॉर द फूड ऐसा उनको सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए होते हैं, तो फिर सीरियल्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ओके, लास्ट इज द प्रोडक्शन इज लेस इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्योंकि वो नॉमेटिक हैं, उनके पास इतने कोई टूल्स और मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे वो फार्मिंग करें, तो प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में। और वो खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही कर रहे हैं, तो भी इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कम होता है। सो this type of agriculture was farming was practiced earlier. Now people have become matured, they know how to do farming. अब तो उनको पता है कैसे करना है, but still in some tribal areas this method is followed. The next type of farming is plantation agriculture, which is also known as commercial agriculture or commercial farming. अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये commercial purpose के लिए, that means for earning profit. Okay, it is like commercial farming. This is a special type of commercial agriculture. इसे हम commercial agriculture का एक special type मान सकते हैं। Commercially useful crops are grown. अब ऐसे टाइप में कुछ commercially useful crops ही grow करते हैं जिसे हम plantation crops भी कहते हैं। Examples are given: rubber, tea, coffee, cocoa, coconut, etc. These are plantation crops and these have very high value. अब इन क्रॉप्स की हाई वैल्यू होती है बहुत मार्केट में, सो प्रोटेक्शन ऑन ऑल साइड्स इज रिक्वायर्ड. व्हाट यू विल डू व्हेन दीज क्रॉप्स हैव हाई कमर्शियल वैल्यू, आपको पता है कि मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो यू विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दीज क्रॉप्स. आप प्रोटेक्शन करेंगे इनका, सो यू विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑल द नेचुरल फैक्टर्स. प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? जितने भी नेचुरल फैक्टर्स हार्म कर सकते हैं उससे प्रोटेक्शन करेंगे, देन ह्यूमन फैक्टर्स से प्रोटेक्शन करेंगे ताकि वो क्रॉप को हार्म नहीं करें. द नेक्स्ट इज हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इनपुट्स एंड मशीन्स. नाउ व्हाट हैपेंस, दीज क्रॉप्स लाइक कॉफी, टी, ये सब का जब आउटपुट होता है, आउटपुट हो जाता है, तो उसके बाद हमको जल्दी से जल्दी प्रोसेस करने के लिए भेजना पड़ता है. इसलिए इनमें हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. और हाई इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मशीन्स चाहिएंगी प्रोसेस करने के लिए. तो वी विल यूटिलाइज ऑल अवर इन्वेस्टमेंट इन द दिस प्रोसेसिंग. वी विल परचेज मशीनरी and we will have to give our best inputs, best quality inputs, so that higher quality of products are obtained. The next is skilled labor requirement, that is great care. Now because these crops are very sensitive, बहुत ही sensitive होते हैं और market value भी इनकी बहुत high है, so you will appoint only skilled laborers जिन्हें अच्छे से care करना आता हो. क्योंकि ये क्रॉप्स बहुत सेंसिटिव हैं, तो हम ऐसे ही लेबर्स को अपॉइंट करेंगे जिन्हें अच्छे से केयर करना आता हो. ओके, नाउ अब अच्छे से केयर करेंगे, वो स्किल्ड हैं, तो उन्हें वेजेस भी हमको हाई देनी पड़ेंगी. ओके, द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. अब जहाँ पे भी आपका ये प्रोसेसिंग हो रहा है, वहाँ से आप मार्केट में लेके जाने के लिए या फिर फील्ड से लेकर प्रोसेसिंग के लिए लेकर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी चाहिए हमें. कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी इन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचा सकें लोगों तक, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे. ओके, सो वी रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी. नाउ इट इज इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, दैट इज
ऑल प्रोडक्शन इज सेंट टू द मार्केट और इंडस्ट्री, इसलिए हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का हम इसे इंटरफेस कह सकते हैं. हम खुद के लिए नहीं यूज कर रहे, वी डोंट यूज इट, सो इट इज कॉल्ड इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज इंटेंसिव फार्मिंग. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस, ये एक कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है. दैट मीन्स यू कैन से फॉर बिजनेस पर्पस. इसमें मेन हमारा एम होता है टू अर्न प्रॉफिट और टू ग्रो एंड सेल द आउटपुट इन द मार्केट. In this type of farming, the aim is to earn profit only. Okay, so कौन करेगा ऐसी फार्मिंग? जिनके पास पैसे होंगे तभी हम ऐसी फार्मिंग प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम इतने कैपेबल हैं कि अपनी नीड सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ही हम ऐसा मेथड प्रेफर करेंगे. अदरवाइज वी कैन गो फॉर द फर्स्ट मेथड विच वी लर्नड. ओके, सो here economic status of the farmer is rich farmer, क्योंकि उसे बहुत सारा बड़ा लैंड होगा तभी ये ऐसी फार्मिंग को प्रैक्टिस कर सकता है. लैंड होल्डिंग्स में आ जाते हैं तो लार्ज लैंड होल्डिंग्स, दैट मीन्स ही हैज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेर ही कैन कैरी ऑन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग बिकॉज ही इज रिच, सो ही हैज लार्ज लैंड. द नेक्स्ट इज मैथड, दैट इज मॉडर्न मैथड ऑफ फार्मिंग. HYV seeds, fertilizers, pesticides etc are used. Now because he has large land, अब क्योंकि वो उसके पास पैसे भी हैं, बड़ा लैंड है, तो what he will do, he will use modern method of farming to get best output. ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पाने के लिए मॉडर्न मेथड यूज करेगा, जिसमें HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अच्छी डालेगा और इन सब की अच्छी से अच्छी क्वालिटी को वो खरीद कर यूज करेगा. द नेक्स्ट इज इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन, दैट इज सबमर्सिबल पंप्स एंड ट्यूबवेल्स. अब क्योंकि उसके पास वो रिच है, वो अफोर्ड कर सकता है ऐसी सब फैसिलिटीज को, तो वो सबमर्सिबल पंप्स एंड ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन प्रैक्टिस करेगा. नाउ बिकॉज द लैंड इज लार्ज, so he can appoint labor to grow crops and he can pay wages also because he has no problem of finance, so he will hire labor. Next is purpose. Now already I told you that this type of farming is practiced to earn profit, so main purpose is economic return, कि उसे अच्छा रिटर्न मिले, प्रॉफिट मिले अच्छा. so he will grow cash crops, ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगाएगा, फूड क्रॉप्स कम उगाएगा, क्योंकि कैश क्रॉप्स से उसे पैसा ज़्यादा मिलेगा, फूड क्रॉप्स से इतना नहीं मिलेगा. द लास्ट इज आउटपुट, दैट इज पर हेक्टर आउटपुट इज हाई. यहाँ पर क्योंकि लेबरर्स अपॉइंट किए गए हैं, लार्ज लैंड है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो जो आउटपुट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा. और क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना है तो वो नेचुरली ट्राई करेगा कि उसका आउटपुट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का हो और ज़्यादा हो. सो दैट इज़ वाई per hectare production is very high. With this we complete the first part of chapter 10, India Agriculture. We will continue the remaining topics in our next part. Thank you.